they are going to be very worried if you believe in the boogeyman. Boogeyman, वो बुढ़वा जो बेड के नीचे छुपता है आके, you know. So your parents also want you to outgrow that fear. So you do, but your parents don't want you to outgrow their teachings. So you stick there, you stay there naturally, obviously. So yeah, it's a result of your upbringing. It's a result of your upbringing initially, and later it is also, you're also, I will say, you know, programmed and guided, shaped your thinking by the society that you are part of. That society also shapes your thinking, not only your family. As you all know, that children are initially shaped by the parents' thinking. Whatever the parents have opinions, those opinions shape their children's thinking. But when children start to spend time outside, then outside people also impact that child. So your most of your beliefs, most of your opinions are a result of your upbringing, your parents, and two, your society, what your society wants you to believe. It's a result of both. Why is it that a 7-year-old girl here will never talk about a boyfriend, especially living in the small towns, okay? But a 7-year-old girl in another country might easily talk about boyfriend, okay? Because of social surrounding, the kind of society you live in. For them, it is normal. For us, it is strange, okay? So it is very easy to understand this, but it is very difficult to accept that we are not as genuine, as original as we want to believe we are. We are not very original. Okay, and by the way, thank you for giving me the time to finish my lecture. Now let's study the book. One thing is very individual. वो आपका जो समझने का क्षमता है ना, वो काफी इंडिविजुअल है आपका. उस पर काम करते रहना. आप कितना जानकारी, कितना इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर पाते हो तेजी से. We are studying unit 7, right, guys? And very soon we are going to start a new unit, unit 8, and that will be so amazing. I'll tell you why. आपने पढ़ा है ना, राम ईट्स ए मैंगो. आपको पता चल जाएगा वो कितना ही बेकार सा सेंटेंस आपने पढ़ा बचपन से. राम ईट्स अ मैंगो. You will understand. Let's study. Please come in. Yeah. Bye bye. दोस्तों, आपने इंग्लिश सेंटेंसेस लिखे. यू रोट इंग्लिश सेंटेंसेस, बट हिंदी यू डिडंट राइट. सबको हिंदी भी लिखना था ना. तुमने तीन तीन सेंटेंस बनाए, लेकिन उसकी हिंदी नहीं लिखी. मैं कैसे जानूं कि तुम्हारे दिमाग में क्लैरिटी है? ओके, तो थोड़ी वहां हिंदी भी लगा देना एडिट ऑप्शन में जाके. ओके, फाइन. ओके, द लूनर लैंडिंग. दिस इज व्हाट वी वर रीडिंग, आई गेस. वॉकिंग ऑन द मून. वॉकिंग on the moon. Armstrong and Aldrin spent 2.5 hours walking on the moon. Armstrong and Aldrin spent 2.5 hours. Armstrong and Aldrin spent 2.5 hours. They spent 2.5 hours. Spent is the V2 of spent. Spent क्या है बेटा? V2 है, फास्ट टेंस है ना स्पेंड का. ओके बेटा, डू द सेम थिंग बेटा. लीव द बैग डाउन ऑन द फ्लोर एंड जस्ट टेक केयर ऑफ योर बुक. यस स्वीटी, दिस इज इजियर. ओके, सो स्पेंड बिताना. ओके, एंड स्पेंट V2. So Armstrong and Aldrin spent 2.5 hours. दो 2.5 hours हिंदी. बिताना, बिताया, बिताता है, बिताएगा क्या? राइट, बिकॉज वी हैव V2. स्पेंट, बिताया. राइट, कि बिताते थे. यहां नहीं अच्छा लगेगा बिताते थे. बिताते थे हो सकता है. लिसन, व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, आई स्पेंट 2 hours every day
प्लेइंग कैरम बोर्ड विद माई फादर। आई स्पेंड 2.5 hours, 2 hours। तो अब यहाँ क्या करेंगे? हाँ, बिताते थे। आई स्पेंड 2.5 hours, बिताते थे। तो अलग अलग जगह पे बिताते थे, कुछ जगहों पे बिताया। अपने हिसाब से, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से पता चल जाएगा। बिकॉज इट हैपेंड वंस, ये एक बार हुआ। तो एक बार हुआ तो क्या बोलेंगे, बिताया या बिताते थे? राइट। ओके। आर्मस्ट्रॉन्ग एंड ऑल्ड्रिन स्पेंट 2.5 hours। दे स्पेंड 2.5 hours। देखना कैसे लिखा है, 2.5 hours, 2.5 घंटे कैसे लिखते हैं? 2.5 hours। ओके, 2.5 hours। चलो 3.5 घंटे बोलो बेटा। 5.5 साल। यस मेरे बच्चे, 5.5 years। वेरी गुड, 5.5 years, 5.5 साल। ओके। हम्म। एंड fine. So they spend 2.5 hours walking on the moon. Okay? They spend 2.5 hours walking on the moon. 2.5 घंटे बिताए उन्होंने चांद पे। कैसे बिताया बेटा? चलते हुए, राइट, वॉक करते हुए बिता दिया, टहलते टहलते बिता दिया। कितने घंटे? 2.5 घंटे तक चलते रहे वो लोग, है ना। अब आप बताओ, आपने टीवी देखा 2 घंटे। आप ये बात कैसे बताओगे आकर के कि आज पता है 2 घंटा बिता दिए टीवी देखते देखते? कैसे बताओगे किसी को? आई स्पेंट 2 hours। वहां पर वॉकिंग लिखा है, आप क्या बोलोगे? है ना। इसको कहते हैं सीखना सामने वाले सेंटेंस से। जो लिखा है उसको पढ़ के सीखना। क्यों मैंने किताब दी, और क्यों किताब में इंग्लिश सेंटेंसेस लिखे हैं, ताकि इस तरह से आप गौर कर ले और ऐसे ही सिमिलर सेंटेंसेस बनाए। तुम अपनी जिंदगी बिता दोगे, है ना, लड़कियों के पीछे भागते भागते। चेस मतलब भागना किसी के पीछे, चेस, CHASE। बोलो। चेसिंग आफ्टर गर्ल्स, चेसिंग गर्ल्स। ओके। यू विल स्पेंड योर, और स्पेंड को यहां पर वेस्ट बोल दे तो कैसा रहेगा? यू विल वेस्ट योर लाइफ चेसिंग आफ्टर गर्ल्स, या चेसिंग गर्ल्स, दोनों में कोई भी बोले, कोई दिक्कत नहीं। ओके। ऑलराइट। मैंने, श्रवण कुमार ने अपना पूरा जीवन बिता दिया माँ बाप की सेवा करते करते। श्रवण कुमार spent his whole life is serving his serving his parents। तो जो सामने लिखा उससे गाइड होते हैं ना हम लोग। अगर वो वॉकिंग नहीं देखते तो हमको दिमाग में आता है कैसे बोलना चाहिए। तो जो सामने आया उससे गाइड हुई है, वो आपके गाइड करने के लिए वो सेंटेंस है। पूरा दिन तुम बर्बाद कर देते हो टीवी देख के, ये अच्छी बात है। बर्बाद कर देते हो, यू वेस्ट, your entire day, your whole day watching TV। Is it good? है ना, ऐसे बोलना है ना, इज इट गुड? आई होप यू अंडरस्टैंड गाइस। ठीक है। नाउ टेल मी about any family members, a sentence like this, if you have any members that you want to talk about. My mom spends the whole morning. Okay, she spends the whole morning doing the housework. She spends the whole morning doing the housework. She spends the whole morning doing the housework. Okay? Easy? Hmm. तुम्हें याद करते करते जाएगी रैन सारी। अब ये लाइन को बोलो। आई विल आई विल स्पेंड आई विल स्पेंड माई होल नाइट। रैन सारी, रैन रात है। आई विल स्पेंड द होल नाइट थिंकिंग अबाउट यू।
तुम्हें याद करते करते जाएगी रैन सारी, राइट? तो व्हाट डिड वी से? आई विल spend the whole night thinking about you, missing you, yeah, remembering you, thinking about you, missing you. ज्यादा नेचुरल कौन है? थिंकिंग अबाउट यू एंड मिसिंग यू, रिमेम्बरिंग यू शब्दों से मैच करता है, मीनिंग फीलिंग में मैच नहीं करता। तुम्हें याद करते करते जाएगी रैन सारी, मतलब क्या तुम्हारे बारे में सोचते सोचते, तुम्हें मिस करते करते। तो मिसिंग एंड थिंकिंग अबाउट यू ज्यादा क्लोज है उस फीलिंग के रिमेम्बरिंग से। लेकिन बच्चों को लगेगा रिमेम्बर मतलब याद करना होता है, वो पहले यूज करना चाहेंगे रिमेम्बर, क्योंकि उनको शब्दों से दोस्ती ये बताया है, रिमेम्बर मतलब याद करना, बात खत्म। लेकिन वो जो याद करते करते रैन जाएगी सारी, वो क्या याद करते हुए, अब सोचो ना, थिंकिंग अबाउट हिम और हर, ओके, और मिसिंग हिम और हर, राइट? तो ये लाइन समझ में आया गाने का? स्पॉन्टेनियस था मेरे लिए। तुम लोग इतना खुश रखते हो मुझे इस क्लास में, इतना कम टेंशन मुझे मिलता है, जिस वजह से आई फील लाइक अच्छा चलो बढ़िया से मजे से पढ़ाते, और ये गाना याद आ गया। आई डोंट थिंक मैंने ये गाना पहले दूसरे क्लास में बोला था ये सेंटेंस पढ़ाते समय। तो आई थिंक एक अच्छा क्लास वो होता है जिसमें ना टीचर भी कंफर्टेबल हो, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टूडेंट्स की होती है कि आप टीचर को कंफर्टेबल रखें। And if somebody, I think a lot of teachers will do better when they are happy in the class. What do you guys say? You guys will also do better when you are happy. ना, you understand more. इमेजिन करो कि तुम आओ और तुम्हारा मूड खराब कर दे हम किसी वजह से, फिर तुम्हारा पढ़ाई पे कितना ध्यान लगेगा? ठीक है, ओके। दे स्पेंड 2.5 hours। तो दो तीन चीजें सीखे हम लोग। V2 ऑफ स्पेंड, स्पेंट 2.5 hours, तरीका 2.5, 3.5, डेढ़ कैसे बोलेंगे बेटा? 1.5 hours, ओके, 1.5 hours, इजी, ओके। फिर कैसे सीखे कि अगर कोई काम करते करते समय बिताना है तो काम करते करते कैसे बोलते वो देख लो। वॉकिंग ऑन द मून, राइट? आई स्पेंड द होल नाइट थिंकिंग अबाउट यू, राइट? अच्छा, मैं ये गाना जब लाइन बोल रहा था, अगर मैं आपको बोलूं आई स्पेंड द होल नाइट, आई स्पेंट V2, आई स्पेंट द होल नाइट थिंकिंग अबाउट यू, मैंने सारी रात बिता दी आपके बारे में सोचते सोचते, ठीक है ये। और उसमें गाने में है कि जाएगी, आई विल स्पेंड, जाएगी रैन सारी, यानी कि पूरी रात सोचेंगे, तो आई विल स्पेंड द होल नाइट थिंकिंग अबाउट यू, ओके। They spent 2.5 hours walking on the moon. They collected samples. They collected samples. Samples, in Hindi we use the word samples. What is the word we use in Hindi? When you want to buy rice, when you want to buy rice, you go to the shopkeeper, the grocer, and you ask him for a little bit of rice, 3, 4 types, okay? And he gives you in different polythenes, different bags, and you bring it home with the price written on it, and you show it to your, yes, yes, you got it, yes, and you show it to your mom, and your mom looks at different rice, okay, and then she says, yeah, this is good. So उसने क्या दिया तुम्हें? सैंपल्स, हिंदी में क्या दिया? नमूना। मैंने कहा था कि आप सही समझ गए, ठीक है। कौन कहता मेरा कान खराब है? वहां से हल्का से बोला, मेरे को समझ में आ गया, वही बोला है वो, ओके तबरेज। तो ये नमूना, सैंपल, राइट? ये, सो दे कलेक्टेड सैंपल्स, ओके। अब हिंदी में नमूना वर्ड हैज अ टू मीनिंग्स। एक तो ये हो गया, और एक फनी मीनिंग होता है, नमूना है बे, साला वो तो एकदम नमूना है, मतलब ही इज सो फनी, सो unique in a funny way, right? Not a very special way, in a funny way. तो वैसे वो नमूना है, उसके बारे में बात मत कर, राइट? सो ये नमूना का मीन वर्ड यूज है, डबल यूज। लेकिन इंग्लिश में वहां उसको सैंपल मत बोल देना, ही इज अ सैंपल। नो,
ही इज फनी, ही इज वियर्ड, क्या बोल देंगे इंग्लिश में? ही इज फनी, ही इज वियर्ड, वियर्ड, ओके, या ही इज वियर्ड मतलब अजीब है, राइट? जब किसी को बोलते हैं अरे वो तो नमूना है, उसके बारे में क्या बात करते, तो वो अजीब है, राइट? नमूना है, ओके। ये नमूना वर्ड का अलग यूज हो गया हिंदी में। तो इंग्लिश में नमूना का एक मीनिंग सैंपल किए, लेकिन दूसरा जगह वियर्ड कर रहे हैं, क्योंकि मीनिंग बदल रही है, एक ही वर्ड यूज कर रहे हैं लेकिन फीलिंग बदल जाती है। जब आप चावल के नमूने लेके आते हैं, यू ब्रिंग सैंपल्स ऑफ राइस, right guys? You bring samples of rice from the grocer, but then when you call somebody अरे वो तो नमूना है, then you are not calling him a sample. No, you are calling him a unique person, and in a funny way, and that's why he's a weirdo. He's a weirdo. Yeah, he's weird, okay? Yeah. All right. Yeah. Armstrong and Aldrin spent 2.5 hours walking on the moon. They collected, Husham, um, okay, talk to me after the class. They collected, और जरा चेहरा धो ले बेटा, Husham, because you're sleepy already. Yeah. They collected, हिंदी, उन्होंने कलेक्ट किया। नहीं, उसकी हिंदी मत करना, वर्ड की हिंदी मत करो, बस समझ जाओ और बोल दो इंग्लिश में, उन्होंने कलेक्ट, तो टेंस ज्यादा सीखोगे। दे कलेक्टेड मतलब बेटा उन्होंने कलेक्ट किया, ओके। और कलेक्ट करते थे भी हो सकता है, लेकिन टेंस सिचुएशन बदलना पड़ेगा। मैं बताता हूं, एज अ चाइल्ड आई कलेक्टेड बॉटल्स इन द स्ट्रीट्स। एज अ चाइल्ड आई कलेक्टेड बॉटल्स इन द स्ट्रीट्स। Yes, Adnan, it is true. Adnan देखा, seriously, sir? Yes. As a child, I collected bottles in the streets. अब हिंदी में क्या बोलेंगे? जब हम बच्चे थे तो हम गलियों में बोतल कलेक्ट करते थे। कलेक्ट यहां पर करते थे आएगा ना? तो आपको बहुत अच्छे समझ है कहां पर किया बोलना है, कहां पे करते थे। अगर आप दिमाग लगाओगे तो समझ जाओगे। हड़बड़ा के बोल दोगे गलत हो सकते, दैट्स अनदर थिंग। सो दे कलेक्टेड सैंपल्स, उन्होंने सैंपल्स कलेक्ट किया। ठीक है, दिमाग में रखो नमूना, बोलने का फायदा नहीं है नमूना, क्यों? प्रैक्टिस हिंदी की करनी की इंग्लिश की। तो कौन सा वर्ड इंग्लिश है, नमूना या सैंपल? तो सैंपल बोल के प्रैक्टिस करेंगे ना। दे कलेक्टेड, उन्होंने सैंपल्स कलेक्ट किए, है ना? दे कलेक्टेड सैंपल्स। क्या आप ऐसे बैठ के घर पे लाइन बाय लाइन पढ़ना पसंद करते हैं और उसका मतलब निकालना पसंद करते हैं? अगर करिएगा तो आपके हित में है ये, यू विल लर्न फास्टर एंड बेटर। अगर यही चीज अवॉइड कर दीजिए, आपकी ग्रोथ काफी रुक जाएगी। दे कलेक्टेड सैंपल्स एंड सेट अप साइंटिफिक इक्विपमेंट। दे सेट अप scientific equipment, devices, right? Equipment. So, और क्या किया उन्होंने? साइंटिफिक इक्विपमेंट सेटअप किया। देखो हम लोगों ने हिंदी कुछ नहीं करी है, लेकिन फिर भी करी हिंदी है। उन्होंने साइंटिफिक इक्विपमेंट सेटअप किया, उन्होंने साइंटिफिक इक्विपमेंट सेटअप किया। डू वी हैव एन एक्स्ट्रा चेयर देयर, प्लास्टिक चेयर? Yes, Vita, don't sit on that one. It makes too much noise, unnecessary noise. Yeah, leave that one. Yeah, take another, the plastic chair. Please, somebody pass the plastic chair to her. Yeah. Thank you, Nasir. They collected samples and set up scientific equipment. अब साइंटिफिक इक्विपमेंट सेटअप किया। अब सेटअप किया नहीं समझ में आ रहा दिमाग में, तो उसके लिए पिक्चर चाहिए, कुछ हेल्प चाहिए। सेटअप किया तक तो आप कर सकते हो। दे सेटअप साइंटिफिक इक्विपमेंट, साइंटिफिक इक्विपमेंट सेटअप किया। क्या होता है साइंटिफिक इक्विपमेंट सेटअप करना? तो इट्स इजी, you put them in place. Okay, this will work, so that they could get more information later. Okay, for example, you can set up a factory, you can set up a if you set up a factory, तो आप फैक्ट्री सेटअप किए, यानी कि हिंदी में क्या बोलेंगे? फैक्ट्री लगाए बोल दिए, है ना? आगे ना मुंह पे। तो वैसे ही उन्होंने साइंटिफिक इक्विपमेंट
लगाए, ठीक है। आपने मुझ पे इल्जाम लगाया, सेटअप किया इल्जाम, नहीं किया ना, क्योंकि फैक्ट्री सेटअप करना, इक्विपमेंट सेटअप करना फीलिंग ही अलग आता है। इल्जाम लगाना और फैक्ट्री लगाना दोनों एक जैसा लगाना थोड़ी है, इतनी समझ तो है हमारे अंदर। तो कैसे हम बोलेंगे एक ही चीज कि यू सेटअप ब्लेम ऑन मी? नो। ओके। तो दे सेटअप साइंटिफिक इक्विपमेंट। तो क्या क्या सेटअप करते हैं नॉर्मली? We set up scientific equipment, we set up a lab, we set up a factory, right? तो ये सब चीजें लगाते हैं, right? तो लगाने का मतलब क्या हो गया? उसको एक्टिव कर देना कि हाँ वो काम करेगा। जैसे सेटअप अ लैब, सेटअप अ लैब, तो लैब लगा देते हैं, लैब बना, लैब लगाया वहां पर, मतलब कि अब वहां पर कुछ टेस्ट वगैरह हो सकते हैं। सेटअप अ फैक्ट्री मतलब वहां कुछ बनेगा, राइट। सेटअप साइंटिफिक इक्विपमेंट, अब कुछ जानकारी आएगी साइंटिफिक इक्विपमेंट से। बाय द वे, इक्विपमेंट मीन्स डिवाइसेस, मशीन्स। इक्विपमेंट मीन्स डिवाइसेस, machines, okay, equipment. By the way, guys, equipment is an uncountable now. Equipment is an, और ये इसके लिए कोई वाई वाई मत करना, बस इंग्लिश में अनकाउंटेबल है एक्सेप्ट करके बैठ जाओ। ओ अच्छा, अनकाउंटेबल है तो इक्विपमेंट्स नहीं बोलते। क्या नहीं बोलेंगे? इक्विपमेंट्स नहीं बोलेंगे। गिव मी अ सेकंड, आई विल सेंड यू अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। गिव मी अ सेकंड। इक्विपमेंट मीन्स द सेट ऑफ नेसेसरी टूल्स। बेटा, इक्विपमेंट मीन्स द सेट ऑफ नेसेसरी टूल्स फॉर ए पर्टिकुलर पर्पस। किसी खास पर्पस के लिए जो भी चीजें लगती है ना, उसको इक्विपमेंट कहते हैं। तो उसमें हर एक मेंबर का नाम होगा। अच्छा, जैसे कि इक्विपमेंट है तो किसी खास पर्पस के लिए इक्विपमेंट, जो भी टूल्स चाहिए, तो हर एक टूल का नाम होगा, इंडिविजुअल टूल का नाम होगा, लेकिन कुल मिलाकर उनको क्या बोल देते हैं बेटा? इक्विपमेंट। इसीलिए इक्विपमेंट, इक्विपमेंट। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत अच्छा आइडिया है जो मैं आपको समझाना चाहूंगा। गौर से सुनिए बेटा, ये चेयर है, ये टेबल है, ये आर्म चेयर है, कबर्ड होता है, बेड होता है, ये सब अपने अपने नाम रखते हैं ना। तो दो बेड्स हो सकते हैं, दो चेयर्स हो सकते हैं, दो कबर्ड्स हो सकते हैं, लेकिन इनको मिला के, सबको मिला के फर्नीचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब दो फर्नीचर कैसे हो सकता है? क्योंकि सबको मिला के फर्नीचर बोल रहे हैं, सारा आइडिया को मिला दिए, तो ये सब क्या है? फर्नीचर है। तो चूंकि फर्नीचर तो कुछ होता ही नहीं देखा जाए तो, फिजिकल थिंग। फिजिकली टच करोगे चेयर है, टच करोगे बेड है, टच करोगे कबर्ड है। बात समझ में आ रही है? तो जो टच करोगे उसी को ना गिन सकते, एक दो तीन ऐसे करोगे, राइट। लेकिन ये सबको मिला दिया कि सब एक साथ आ गए, तो उसको क्या कहते हैं बेटा? फर्नीचर। तो फर्नीचर क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। यानी फर्नीचर इस ग्रुप का नाम हो गया, ऐसे चीजों को फर्नीचर कहते हैं। और सुनिएगा, रोड पे जाओ, लेट्स गो ऑन टू द रोड्स। जब रोड पे जाते हैं, वी सी कार्स ऑन द रोड। एक कार, दो कार, तीन कार, पांच कार, बेकार, ओके, ठीक है। तो वो हो गए। फिर बाइसिकल्स, वन टू थ्री फोर फाइव बाइसिकल्स। ट्रक्स, बाइक्स, स्कूटर्स, ऑलराइट, ऑटोज, सब हैं। सबको मिला दो बेटा, ट्रैफिक। ट्रैफिक। अब बोलो ट्रैफिक को प्लूरल कैसे करें? क्योंकि ट्रैफिक कोई चीज ही नहीं जिसको दो कर सकते हैं, तो प्लूरल कैसे? तो देर इज अ लॉट ऑफ, जब ट्रैफिक अनकाउंटेबल है तो प्लूरल नहीं हो सकता मेरे बच्चे। देर इज अ लॉट ऑफ ट्रैफिक। देर इज अ लॉट ऑफ ट्रैफिक मतलब देर आर लॉट ऑफ कार, देर आर लॉट ऑफ बाइक्स, देर आर लॉट ऑफ ट्रक्स, देर आर लॉट ऑफ ऑटोज। कुल मिला, हाँ वो सब काउंटेबल है, इंडिविजुअल का नाम है। उस ग्रुप का क्या नाम है बेटा? रोड पे जब रहे तो ट्रैफिक। रोड पे है वो सारा चलते हुए, तो उसको कहते हैं ट्रैफिक। तो अनकाउंटेबल हो गया वो भी। जैसे यहाँ आप देखिए, एक काम के लिए कोई काम करना, मान लो यहाँ पर गड्ढा करके इसमें ढूंढना है कुछ कि सोना है कि नहीं, ऐसा वैसा। तो बहुत सारी यहाँ पर मशीन्स लगेंगे, टूल्स लगेंगे, तो उन सबको एक साथ कहेंगे इक्विपमेंट। सबका अपना अपना नाम होगा, अलग अलग,
लेकिन कुल मिला के जैसे यहाँ कैटेगरी का नाम किया, तो कैटेगरी का नाम क्या कर देंगे बेटा? इक्विपमेंट। तो फर्नीचर, ट्रैफिक, इक्विपमेंट, ये सब एक खास तरह के वर्ड्स हैं, अपने आप में कुछ नहीं होते हैं, एक ग्रुप के चीजों को ऐसा कहा जाता है। ठीक है? वी हैव अ लॉट ऑफ फर्नीचर इन आवर हाउस, वी हैव अ लॉट ऑफ फर्नीचर, देयर इज अ लॉट ऑफ ट्रैफिक ऑन द रोड टुडे। Okay, they have all the equipment. They have all the equipment in the lab. लैब में सारा इक्विपमेंट है, यानी जितने टूल्स की जरूरत पड़ेगी वो सारे टूल्स हैं। ठीक है? सारे मशीन्स हैं। दे हैव ऑल द इक्विपमेंट। तो ये प्लूरल नहीं होती है सारे। एक पैटर्न दिखा कि किस तरह से ये नाउन बनते हैं, इनका मतलब क्या होता है। इंडिविजुअल मेंबर्स का नाम है अलग और उनके काउंटेबल, वो काउंटेबल हो जाएंगे, बट ये ग्रुप है। ट्रैफिक इज अ ग्रुप, फर्नीचर इज अ ग्रुप, एंड इक्विपमेंट इज ऑल्सो अ ग्रुप इन अ वे। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, किचन इक्विपमेंट। ठीक है? यानी कि वो चीज टूल्स जो किचन में जरूरत होंगी, किचन इक्विपमेंट। ऑलराइट, इक्विपमेंट। So they set up scientific equipment. All right. Finally, finally suggest after सारा कुछ होने के बाद, finally they put up a US flag. अब हिंदी करेंगे। उन लोगों ने एक यूएस फ्लैग पुट अप किया, ऐसे बोलना है हमें। अब उसके बाद पुट अप का अपने आप मतलब निकलने लगेगा मन में, क्या किया होगा बताओ? बहुत बढ़िया। हिंदी में फिर से लगा दिया बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? तो उन्होंने एक झंडा लगा दिया बोल सकते हैं कि नहीं लगा बोल सकते हैं? तो वहां भी लगा दिया बोले, यहां भी लगा दिया बोले, लेकिन फीलिंग आ रही है ना झंडा लगाने में। बस ऐसा नहीं झंडा काम करने लगता, झंडा लगा दिया ऐसे। अब बताइए, बैनर आप लगाओगे घर के सामने, सेटअप करोगे पुटअप करोगे? सोच के बताओ, जैसा देखा है यहाँ पे दोनों सेंटेंस सुना है ना? बात समझ में आ गई? यू विल पुट अप अ बैनर। सर व्हाई डोंट यू, आप सर बैनर क्यों नहीं लगा देते बाहर में? व्हाई डोंट यू पुट अप अ बैनर आउटसाइड? गॉट इट एवरीवन? इजी? ओके। फाइनली दे पुट अप अ यूएस फ्लैग। जो मैं करता हूं इस कोर्स में, वो आपको कोई इंस्टीट्यूट करता हुआ नहीं नजर आएगा। जो मैं करता हूं, मैं क्या करता हूं, मैं आपको इंग्लिश को तोड़ तोड़ के हाथ पैर अलग करके नहीं सिखाता। मैं एक इंसान के तौर पे इंग्लिश को साथ रखता हूं, कहता हूं मिलो, इसको समझो, जानो। कभी उसकी बात गौर करो, कभी उसके बॉडी पे गौर करो, कभी उसके चेहरे पे गौर करो, कभी उसके टोन पे गौर करो। यानी गौर करो इंग्लिश पे ओवरऑल। ज्यादातर जगहों पे इंग्लिश को समझने के लिए पहले उसको काट के अलग कर देते हैं और उसके बाद उसके बारे में बात करते हैं कि ये फलना हाथ है इसका, इंग्लिश का ये नाउन है। आज नाउन की बात होगी, 10 दिन तक नाउन की बात चलेगी। ठीक है? ये तब अच्छा होता जब आपके पास ऑलरेडी लैंग्वेज की समझ बन गई है, तो ये बेहतर होता है समझना। तो इसीलिए जो लोग बच्चे अच्छे स्कूल में जाते हैं उनको कभी इस तरह के ट्यूशन क्लासेस की जरूरत नहीं पड़ती। जो बच्चे अच्छे स्कूल में जाते हैं वो कभी ऐसे ट्यूशन क्लासेस में उनकी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि स्कूल में वो सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं। लैंग्वेज भी सीखते हैं वो, लिटरेचर भी पढ़ लेते हैं, ग्रामर भी सीख लेते हैं। ठीक है? वो सारी चीजें कर लेते हैं। तो अभी मैंने आपको सिखाया पुटअप और सेटअप। क्या ये प्लान था कि कौन सा चैप्टर होगा? नहीं। इंग्लिश के कुछ कॉमन वर्ड्स हैं, जानिए, और धीरे धीरे ये वर्ड्स आपस में आपके दिमाग में एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे और आप कुछ ऐसी बातें बोलेंगे जो आपने इस किताब में नहीं सीखी हैं। आप कुछ ऐसी बातें बोलेंगे जो आपने इस किताब में नहीं सीखी हैं। पॉइंट ऐसा है, समझिए। 1.5 साल का बच्चा 2 सेंटेंसेस बोल पाता है, 3 सेंटेंसेस बोल पाता है। तो 1.5 साल लगा 2-3 सेंटेंस बोलने में। तो 3 साल में उसको 6 सेंटेंस बोलना आना चाहिए, और 3 साल में वो 600 सेंटेंस बोल रहा होता है। सुबह से शाम तक बचर बचर करता रहता है 3 साल का बच्चा। क्लियर नहीं बोलता लेकिन बोलता रहता है। कैसे 1.5 साल में अब इतनी ज्यादा क्यों? वैसे ही इसको कहते हैं गुणात्मक श्रेणी का ये प्रोग्रेस, यानी कि डेवलपमेंट जो चेंज होता है वो एपी में नहीं होता कि 2 2 4 2 6 2 8 ऐसे नहीं होता। लैंग्वेज का जो ग्रोथ होता है वो जीपी में होता है। आप 2 सीखे, फिर 4 सीखे, फिर 16 सीखे, फिर 256 सीखे। लैंग्वेज ऐसे बढ़ता है।
इसीलिए पहले साल का ग्रोथ दूसरे साल के ग्रोथ में सिमिलैरिटी नहीं रहेगा, कितना ही और होगा, उससे बहुत ज्यादा हो सकता है वो। क्योंकि आप गौर करके देख ले अपने घर में बच्चे को, 2 साल का बच्चा थोड़ी थोड़ी बातें बोलता है, 4 साल का बच्चा कितना बोल रहा होता है, दुगना नहीं बोलता है, 200 गुना बोलता है। तो दैट इज हाउ यू लर्न लैंग्वेज। अगर आपको ये सब बातें समझ में आए तो जो एपी पे जमा करेगा ना, वो कभी लैंग्वेज के साथ कंफर्टेबल नहीं होगा कि पहले 6 महीने में 400 वर्ड सीखे, अगले 6 महीने में 400 वर्ड सीखे, टोटल 800 सीखे। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर इस रफ्तार में जाओगे तो यू विल नेवर लर्न। आप ऐसा कर सकते हैं कि पहले 6 महीने में आपने 400 वर्ड सीखे, दूसरे 6 महीने में आपने 400 वर्ड सीखे हैं, लेकिन एक साल खत्म होते होते वो 400 गुने 400, 16,000, 1,60,000 शायद वर्ड्स आपके दिमाग में होंगे। मैं बताता हूं क्यों। आपने एक वर्ड सीखा, फिर 4 वर्ड इधर सीखा, तो ये एक और चार मिल करके 4 हो गए, फिर 4 और सीखे, तो चारों के साथ चारों का कॉम्बिनेशन बनेगा आपके दिमाग में, और 16 तरह की बातें आप बोलेंगे, 8 नहीं। ऐसे समझिएगा कि मैंने आपको तीन तीन वर्ड सिखा, आई यू वी दे, और 3 वर्ड सिखा है, गो लाफ ईट। तो तीन तीन छह नहीं है, अगर आप लैंग्वेज से सीख रहे हैं तो वो तीनों एक, फिर तीनों के साथ दो, तीन तीन 9 हुए। और फिर कुछ अगर 3 वर्ड सिखाऊं तो वो तीनों के साथ 9 या 27 होने चाहिए। ऐसे लैंग्वेज सीखी जाती है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उसको स्टोर कर लेते हैं, प्रोसेस नहीं करते, क्या करते हैं, स्टोर कर लेते हैं। तो वो ऊपर ऊपर ऐसे जमता जाता है, वो एपी में चला जाता है, एरिथमेटिक प्रोग्रेस, अगर आपको प्रोग्रेशन अगर आपको समझ में आ रहा हो तो। और जब आप उसको इंटरैक्ट कराने लायक बनते हैं तो वो जीपी में होता है। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप खाली जमा ना करें वोकैबलरी को, वर्ड्स को, आप एक दूसरे के साथ उसका प्रोसेस करवाएं, और आपकी ग्रोथ बढ़ती चली जाएगी। तो दे पुट अप अ यूएस फ्लैग गाइस, फाइनली दे पुट अप ए यूएस फ्लैग आफ्टर 22 hours on the moon. After 22 hours on the moon, the lunar module lifted off. Which the lunar module? Yesterday I explained part of something, but it works alone as a complete thing. So the lunar module lifted off and flew up to join the rocket because it was part of the rocket now. So it went back to the rocket that took them back to Earth, and that rocket took them back to Earth. That rocket took them back to Earth. They left an inscription. They left an inscription. Took them back to Earth. वो रॉकेट जो उनको वापस धरती पे ले आया. Okay? That rocket took them back to Earth. They left an inscription. They left. उन्होंने, हाँ, वहां पर एक इंस्क्रिप्शन छोड़ा. क्या इंस्क्रिप्शन था, देखो. Here, men from the planet Earth first set foot upon the moon, July 1969. We came in peace for all mankind. This was the inscription. Okay, inscription means a writing, but not writing on paper. Writing on paper is not called inscription. Writing on hard surfaces like stones, like metal, like wood, that writing is called inscription. All right, in Hindi we use the word Shila Lake, right? Have you heard the word? Shila Lake. Okay, inscription. We understand history with the help of inscriptions. Okay, they left an inscription there. And what was the inscription? Here, inscription matlab batao beta. Writing on something hard. Writing on something hard. Writing on paper is not called inscription. Writing on a stone, writing on a wood, writing on a metal. And how will you write on a metal? How will you write on a wooden surface? How would you write on a stone surface, rock? With a chisel, with some small tools, with a hammer. Okay, so that kind of writing is called an inscription. Okay, inscriptions of Ashoka time were found about 100 years ago, 150 years ago, 1800 something. Okay, before that, people didn't know that there was a king called Ashoka. Do you know this? बताया था मैंने आपको.
गौर से सुनिएगा। आज आप सब जानते हैं कि एक राजा होता था, क्या नाम था उसका? ही वॉज अ रियल किंग, and we have so much information about him today. We know so much about his life, what kind of king he was. There are legends that he killed a lot of his brothers to become the king. And he was not a very good looking man. He was not a good looking man. He was the son of a king, but his mom was not a queen. Do you understand what I mean? His mom was not a queen, but his father was a king. Because back then it was pretty common for powerful people to have multiple women. So Ashoka's father had a lot of women. One of them was his mom. So Ashoka had the genes of his father. आपको तो पता ही, आपके नेचर और स्वभाव की जो चीजें हैं कहाँ से आती हैं आपके अंदर? आपके माता पिता के जीन्स हैं। तो he received his father's genes, and his father was a king, so he also wanted to be a, he had the qualities. He managed to defeat all the challenges. और इसीलिए मैं कहता हूँ, पास्ट में किसी भी आदमी की बहुत ज्यादा तारीफ जब आप करते हो तो आप थोड़े से अंधभक्त बन जाते हो, क्योंकि आपको समझ में नहीं आता कि पास्ट का टाइम कैसा था। आपको कैसा लगेगा अगर आज मैं अपने 10-12 भाइयों की मर्डर करके कोई बड़ा सा चीज पे अपना अधिकार कर लूं, तो आप मेरे को बहुत रिस्पेक्ट करोगे, क्योंकि कैसा आदमी है, राइट? बट अशोका वॉज द किंग, ओके, ग्रेट किंग। ग्रेट किंग किसको कहते हैं बेटा? अरे वो तो हिंदी हो गया। किसको कहते हैं मैंने पूछा था, मैंने पूछा तो उसकी हिंदी बताओ। क्या करते हो यार? अ ग्रेट किंग, well, there are a lot of things. Maybe he had a big land that he governed, a great king, and maybe his subjects were happy, his people were happy, right? And maybe, yeah, there was prosperity in his time, not many wars. These are the things that may qualify somebody as a great king, great emperor. तो अशोका रियलिटी नहीं था, पता है आपको? अंटिल 1835 या 1876, ऐसे कोई डेट है, 1800 समथिंग, लोगों को पता ही नहीं था उसके बारे में कुछ। लोग कहते थे काल्पनिक कहानी है वो। क्या कहते थे? किस धर्म की? नहीं, बुद्धिस्ट, बुद्धिज्म की। बुद्धिज्म की काल्पनिक कहानी लोग कहते थे उसको। क्यों? देयर वाज नो एविडेंस। बुद्धिज्म में उसके बारे में खूब चर्चा। ओके, देयर आर अ लॉट ऑफ स्टोरीज अबाउट हिम कि प्रियदर्शिनी वाज अ किंग, हिज नेम वाज प्रियदर्शी, प्रियदर्शी नॉट प्रियदर्शिनी, प्रियदर्शी। ओके, प्रियदर्शी वाज अ किंग, ही हैड बिग लैंड एंड दिस एंड दैट। किसी को कुछ पता नहीं, खाली बुद्ध धर्म में। तो धर्म में किसी के बारे में बताया जाता तो उसको लोग सीरियसली नहीं लेते, खाली उस धर्म के लोग सीरियसली लेते हैं, बाकी के लोग कोई सीरियसली नहीं लेता। लेकिन देन हिस्टोरियंस फाउंड आउट इंस्क्रिप्शंस, तब पता चला कि ओ माय गॉड, देयर वाज अ किंग एंड एवरीथिंग इज रिटन। देयर आर सो मेनी इंस्क्रिप्शंस दैट हैव बीन फाउंड अबाउट अशोका इन लास्ट 150 years, एंड नाउ वी नो अबाउट हिम। बताओ, आदमी कैसे भूल जाता है अपना पास्ट? लोग कहते हैं कि सिंधु सभ्यता कैसे हम लोग भूल गए, और ये कैसे हुआ, कैसे हुआ। आप, हमारे बिहार से था वो, इसी राजगीर, मगध, बिहार शरीफ, इसी में 2300 साल पहले वो राजा था। तो क्या बीच में आदमी एकदम गायब हो गया था कि मेमोरी चली गई? क्या हुआ? कैसे लोग भूल गए उस इंसान को? सच अ ग्रेट लीडर, रूलर, एंड पीपल फॉरगॉट अबाउट हिम। बीच से कनेक्शन खत्म। 1800 तक लोगों को कहानी नहीं पता थी, यहाँ के लोगों को नहीं पता थी, सिर्फ बुद्धिस्ट लोग बात कर रहे थे। और तो छोड़िए, उड़ीसा जिसको उसने अटैक करा, जहां खून खराबा हुआ, वो भूल गए थे उसको, जिसने इतना खून खराबा करा था। इजंट इट अमेजिंग कैसे हिस्ट्री कैसे मूव करती है, कितने बीच में ब्लैक स्पॉट्स आ जाते हैं जहां जानकारी मिसिंग है। हमारे घर में मेरे नथुन राम दादाजी, मैंने बताया होगा आपको, माय ग्रेट ग्रैंडफादर नथुन राम। आई डिडंट टेल यू अबाउट हिम। वेयर डिड आई मेंशन हिम? क्या बात करते हो? आई डिडंट टेल यू। माय ग्रेट ग्रैंडफादर वाज अ बिग रेसलर इन शेखपुरा।
If anybody is from Sheikhpura, they would talk to their grandfather and they will know. My great grandfather was a big wrestler. His name was Nathun Ram. Okay. My father told me his stories. I didn't believe his stories first. I thought, Papa, ऐसे ही फेंक रहे होंगे. All right. So I didn't believe his stories very much. It is my nature. मैं ना अच्छी बातों को ज्यादा अपने बारे में वैल्यू नहीं करता. तो I thought कि पापा ऐसे फेंक रहे. But I remembered the stories he told me that he was 6 feet tall. He was a very big wrestler. Not many people could fight with him. He was so strong and all. My Dadaji was strong, tall and strong. My Papa was just like me, I'm average, not very tall, not very strong. My Papa was more like me. So I found it hard to believe that my great grandfather was such a big wrestler because I didn't see anybody like that in my family. My Dadaji was tall and he was strong, but still, I didn't think my great grandfather was such a big wrestler. And one day, I talked about him in one of my classes, like I'm talking about him here. And there was a girl student. She came back the next day and she told me that my grandma knew your great grandfather. I said, What? Yeah, she told me that there was a big wrestler. His name was Nathun Ram. And she used to hear stories about him when she was a kid. Means that the student's grandmother was a kid when she heard stories about my great grandfather. I thought, really? First time I believed my father. Wow, wow. मतलब first time I believed that story. He was not telling me lies. क्योंकि कोई और बता रहा है मेरे को आके कि हाँ कोई थे मेरे दादी बताई. 2 days ago, somebody told me, 2 days ago, somebody told me that at the railway station, my great grandfather's name is mentioned. Nathu Ram Pahalwan on the entrance gate. He was such a big person there. ठीक है. और हम तीसरे जनरेशन है और हमें इस बारे में कोई खास जानकारी. और मेरे बाकी चचेरे भाई लोगों को कितना पता, आई डोंट नो. My father told me stories, so I knew a little bit. I knew his name. I knew what he was like. He had a big mustache and stuff like that. Okay. बस इतना ही. लेकिन अब मुझे पता चलता है कि यार यार वो तो बड़े पहलवान थे. ओके गुड. एंड उनकी जमीन है अभी. वो पता चला हमें करीब 2 साल पहले. लैंड दैट नोबडी हैज क्लेम, इट इज स्टिल अगेंस्ट हिज नेम. लेकिन हम लोग नहीं ले सकते बिकॉज वी हैव सो मेनी कजन्स. सबको क्लेम करना होगा एक साथ, अदरवाइज इट वुड बी डिफिकल्ट. सो वी हैव अबाउट 3 कट्ठा लैंड ऑन द रोड साइड. बरबीघा से इधर आ रहे होते हैं ना, तो उसी रोड पे कहीं पे. तो ऐसे करके गैप आ जाता है हिस्ट्री में. आप 3 जनरेशन में देखो इतनी जानकारी घट गई. लोग नहीं वैल्यू करते बताना. सो पीपल डिडंट नो अबाउट अशोका. इंस्क्रिप्शंस आर वेरी यूजफुल. आप लोग भी अपने परिवार का ना इंस्क्रिप्शन बनवा के दीवार में टंगवा दो अपने घर में. कुछ हो चाहे नहीं, वो रहेगा. ओके. ये योर ग्रैंडफादर्स नेम, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर्स नेम, योर फादर्स नेम, पूरी फैमिली ट्री दीवार पे बनवा दो. Your children will get to know that, even if you don't tell them. Okay. Is it exciting to know about these things? पूरा history जानना? I find it very interesting. Okay. Armstrong. Finally, okay, they left an inscription. हिंदी में क्या बोलेंगे बेटा? उन्होंने एक इंस्क्रिप्शन वहां छोड़ दिया, रख दिया वहां पे, है ना. एंड व्हाट वाज द इंस्क्रिप्शन? दैट यहां पर हमसे कोई झगड़ा नहीं करेगा, हम लोग से कोई ताकतवर नहीं है. नो, दे लेफ्ट अ पीसफुल मैसेज. ऑलराइट. द मैसेज वाज, men from the planet earth first set foot upon the moon. First set foot on upon the moon. पहली बार कदम रखे. Set foot upon the moon. First set foot upon the moon. Set is the V2 of set. Set is the V2 of set foot. Here, men from the planet Earth first set foot upon the moon, July 1969. We came in peace for all mankind. We came in peace for all mankind. No war message. Okay? Message of peace. We came in peace for all mankind. हम लोग यहाँ लड़ने नहीं आए हैं ना, वैसे छोड़ दिया. They thought maybe there are aliens.
And if they find out these things, they might consider it a an attack, invasion, तो फिर गड़बड़ हो सकता है. So they left a peaceful message कि अगर कोई aliens रहते हो moon पे, that time they had no idea. So they thought if there are aliens on the moon, they would read the message and they would understand that we did not attack them. Because imagine if there were some people living on the moon, aliens type people, and they saw all those flags and equipment, they would think, who are these people? Who came here? And if they felt, bad about it, they would attack Earth. So they didn't want it. This flight was the beginning of man's exploration of space. Man's exploration of space. Nasir Hussain, ध्यान दे दे बेटा. This flight was the beginning. This flight was the ये शुरुआत थी. This flight was the beginning. Beginning of what? Beginning of man's exploration of space. Space exploration matlab to find out. Exploration. Let me explain the word exploration. You go to a park, a big park, for the first time, and you go and sit under a tree. You eat the chinia badam and you come out. Okay, after 2 hours. Now tell me, did you explore the park? Did you explore the park? You did not go to different parts. You did not learn anything about it. You did not explore the park. But imagine you went to different places in the park and then you came out. Then you would say, yeah, I explored the park. To explore means to find out, to learn, to get information. All right, that is called exploration. Okay, so explore is the verb. Let me explain another idea, another word in the different context. A boy and a girl talk to each other before marriage, right? They talk for hours and hours. They meet for coffee. They go to the cinema. Why do they do it? They do it because, hello, yeah, I'm in class. Hmm. Yep. Talk to you later. You're going home. All right. Will No problems. Will you join the class? Sure. Okay. 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 See ya. Bye. So I was saying, um, exploration. A man and woman talk to each other, go on coffee together, go to the cinema together, spend time with each other. What are they trying to do? They are trying to explore each other's personalities so that they can decide whether they want to be married, they should be happy or not. मेन आइडिया यही है डेटिंग का. अलग बात है कि लोग थोड़ा सा कैरिड अवे हो जाते हैं, राइट? बट द मेन आइडिया बिहाइंड डेटिंग इज दैट दिस इज द मेन आइडिया दैट यू एक्सप्लोर ईच अदर्स पर्सनैलिटी. एंगेजमेंट के बाद कहते हैं बातें करा करिए आप लोग एक दूसरे, क्यों? जानिए समझिए, एक्सप्लोर ईच अदर्स पर्सनैलिटी सो दैट यू कैन एडजस्ट मोर इजिली आफ्टर मैरिज. ओके, एंड इफ यू थिंक इट इज नॉट पॉसिबल, छोड़ दीजिए, अभी तोड़ दीजिए, एंगेजमेंट तोड़ दीजिए. अब शादी के बाद इज गोइंग टू बी मोर डिफिकल्ट ना. तो दैट्स वाई. लेकिन लोग आजकल कैरिड अवे हो जाते हैं, उनको लगता है डेटिंग इज अ बैड थिंग और क्या क्या बहुत सारी बातें हैं, कॉम्प्लिकेटेड है. चलो ठीक है, बट आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया. डू यू वांट टू बी मैरिड टू अ कंप्लीट स्ट्रेंजर? इज इट अ गुड आइडिया टू बी मैरिड टू अ कंप्लीट स्ट्रेंजर? ये तो हो गया ब्लाइंड लॉटरी यार. यार बढ़िया भी निकल जाएगा, खराब भी निकल सकता है लॉटरी, राइट? नॉट अ गुड आइडिया. आप लाइफ के साथ लॉटरी खेलोगे? और इमेजिन करें कि बच्चे होने के बाद लॉटरी खराब पता चले, तब और मुश्किल है कि नहीं. फिर बच्चा भी डिस्टर्ब हो गया. बच्चे की कोई गलती नहीं होती ना. द बिगेस्ट प्रॉब्लम, हस्बैंड वाइफ डोंट लिव टुगेदर, नो इश्यूज, दे विल फाइंड डिफरेंट पार्टनर्स. बट द प्रॉब्लम इज व्हेन दे हैव चिल्ड्रन. वो दोनों तो दूसरे मम्मी पापा भाई हस्बैंड वाइफ ढूंढ लेंगे, बट व्हाट अबाउट द चाइल्ड? उसको तो वही दोनों चाहिए ना, क्योंकि दोनों इंपॉर्टेंट है उसके लिए. I find this a bigger, when I worry about the future, I worry about this a little bit. That, in the future, children will not have love of parents as much as they have today. पेरेंट्स जो है ना, मम्मी पापा का प्यार बच्चों को कम होता जा रहा है धीरे धीरे. Because parents are busy with their own lives, they value their own life more, and divorce rates are more.
more frequent. Okay. And who suffers most because of divorces? Children, of course. The flight was the beginning of man's exploration of space. Now we have already reached Mars, not as human beings, but we have put our robots there. We are surveying, we are finding out information about the surface of Mars. Yeah, we think there is water there. They have found some water on Mars. Don't know whether there will be life as well. Do you think it's an exciting idea? Life on other planets? भाई, बिछड़े हुए, हाँ आ जाओ मिलो, गले मिल के चाकू मार दिया तो? I mean, imagine if those people came to Earth and they said, wow, we are very happy to see you. And when they find out that we are not as strong as them, as powerful as them, and they kill us all, then there are a lot of movies about these things. Okay. Why couldn't the astronauts sleep? Exercise question number 5. Why couldn't the astronauts sleep? The astronauts, matlab beta, the people who go into space are called astronauts. Why couldn't the astronauts? अगर the astronauts बोल रहे हैं तो कोई भी astronauts की बात नहीं कर रहे हैं, जो आपको पता है ये 3 की बात कर रहे हैं. Why couldn't the astronauts sleep? Because they were too excited. They were too excited, so they couldn't sleep. What did Armstrong say as he stepped onto the moon? What did he say, Armstrong, when he stepped onto the moon? That's one small step for man. That's one small step for man. One giant leap for mankind. How long did they spend walking on the moon's surface? They spent 2.5 hours. They spent 2.5 hours. How long did they spend? How long did they spend? How long matlab beta? कितना देर? How long did they spend? कितना देर बिताया? How long did they spend? Did they spend और will they spend कर दे तो बेटा? Will they spend? Did they spend की जगह बिताएंगे, और did they spend की जगह do they spend कर दे तो बिताते हैं. ये दिमाग में चलने लगे ना सही से, फिर मैंने बताया ना एनर्जी बचेगी दूसरी चीजों के लिए, नहीं तो इसी में खटते रहते, परेशान रहते, क्या क्या कैसे क्या, यही में परेशान फंसे रहते हैं. हाउ लॉन्ग डिड दे स्पेंड? कितना देर उन्होंने बिताया. हाउ लॉन्ग डू दे स्पेंड? कितना देर बिताते हैं. मैं आपसे पूछूं, आप कितना देर बिताते हैं इंग्लिश के साथ घर पे? हाउ लॉन्ग डू यू स्पेंड विद इंग्लिश एट होम? आंसर. How long do you spend with English at home? And be honest. Don't lie to me. I'm not going to shout at you. Okay? So accept the reality so that you can realize if there is a problem or it's all right, everything is fine. How long do you spend with English? I am saying spend with English. What does it mean? It means listening to English, reading in English, talking in English, writing in English. Spend with English. Watching a YouTube video in English. Okay, yeah, anything. How long do you spend with English at home? You do. That's great. If anybody spends more than 1 hour at home, then I'm happy with that. If you spend more than 1 hour with English, okay, with English, spend 1 hour with English means listening to English, listening to the audio files, or listening to YouTube videos, watching the recording of this class. 1 hour. If you spend more than 1 hour, you are fine. You're doing okay. If somebody spends less than 1 hour, they should spend more. 1 hour at least at home. Spend with English. I'm not saying spend 1 hour doing your homework. No, I'm saying spend 1 hour with English. मतलब घर पे समय बीतना चाहिए कि हम कुछ कर रहे हैं इंग्लिश के साथ हो रहा है, या तो पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, देख रहे हो, इंग्लिश होना चाहिए वहां पे. ओके, या दैट्स इंपॉर्टेंट. व्हाट डिड यू से?
Very bad. You think I didn't hear that? शैतानी मतलब। चलें आगे बढ़ें. How long did they spend walking on the moon's surface? Okay, next. What did they leave on the moon? They left an inscription. Not only an inscription, they left some scientific equipment. आप इसका जवाब ऐसे दे सकते हैं. They set up some scientific equipment. They put up a flag, a US flag, by the way, and they also left an inscription. Okay, पूरी बात ऐसे, क्योंकि जो भी छोड़ा, ठीक है, वो लाइन वहां लिखा, दे लेफ्ट एन इंस्क्रिप्शन, लेकिन क्या कहते हैं, वो झंडा वहां नहीं छोड़ा, वो साइंटिफिक इक्विपमेंट नहीं छोड़े वहां पे. So what did they leave on the moon? What did they leave? Leave is the V1, left is the V2. What did they leave on the moon? They set up some scientific equipment, they put up a flag, and they left an inscription with a message for peace. The inscription had a message for peace. Yeah. Exercise 6, speaking section. Find the numbers in the texts. What do they refer to? So ये सारे नंबर्स आपको याद आ रहे हैं, कुछ कुछ बता रहे हैं आपको. 1909. हम्म. मैन, a man called, ऐसे करते चलते हैं, a man called Louis Blériot, who was French, right, right, completed the first air journey in 1909. He flew from Calais to Dover. He flew from France to England. कोई जरूरी वही बोले, दूसरा बोले. He flew from France to England. तो आपके पास फुल फ्रीडम है. ओके, बट वांट डू दिस विद अ पार्टनर. ठीक है, एक पार्टनर के साथ ये सारे नंबर देखिए और अपने दिमाग में लाइए क्या था वो मामला, पूरी बात बताने की कोशिश करिए. ओके, ट्राई टू रीटेल द स्टोरी, पूरी स्टोरी दोबारा बताने की कोशिश करिएगा. ओके, जो जी चीजें आपको याद हैं एक दूसरे को, विद द हेल्प ऑफ दीज नंबर्स. एंड इफ यू नीड माई हेल्प, आई एम राइट हियर. डोंट हेजिटेट. या इनाया, प्रैक्टिस विद सचित इफ यू कैन. कहानी अगर मैं थोड़ा और बना देता हूँ, रुक जाओ, आसानी से अच्छा ग्रुप बना देता हूँ. Adnan is talking to Deepak. Okay, there. Who is your partner there? Okay. Hmm. 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 All right. Nasir, you joined Tabriz and your friend Sajid. Okay. Asim, you join this group. Deepak and Adnan. Yes. Ayat beta, join those two bhaiyas. Mashuk and Rishabh. Yes. Hmm. Come, come, come. Yes. All right. Hmm.
The second number is 37. Mr. Blériot was 37 years old, and it took him 37 minutes to complete the journey, right? It took him 37 minutes. It took him 37 minutes to complete the journey. 4:30. Mr. Blériot started his journey at 4:30 in the morning from a field at the edge of a cliff. Okay, you could also, these are not the only words. You could start, instead of saying Mr. Blériot, you could start his plane, हाँ बोलिए बोलिए, his plane took off at 4:30, right? तो अलग तरीके से भी बोल सकते हैं. 40. The plane flew at 40 miles per hour. ये छोटा सा वर्ड एट यहां बोलना बहुत मायने रखता है. The plane flew at 40 miles an hour. 250. The plane flew at an altitude of 250 feet. The plane flew at an altitude of 250 feet. 1,000. When Mr. Blériot finished his flight, it was celebrated in Paris and London both, and he won a prize of 1,000 pounds. He won a prize of 1,000 pounds. Let's talk about the second story. 1969. 1969 was the year when नील आर्मस्ट्रॉन्ग और अपोलो 11, जिधर जाना चाहे आपकी मर्जी, जिधर जाना चाहे उधर जाए, फ्रीडम. मेरे क्लास में पढ़ने से यही आता है, आपके जो थॉट्स आएंगे वो सेंटेंस का रूप ले लेंगे. ठीक है, जो आपके मन में थॉट्स आएंगे वो सेंटेंस का रूप ले लेंगे. यही फायदा है, आपको कुछ नहीं रोकेगा. चलिए, जिधर जाना चाहिए. 1969 was the year. आप ऐसे नहीं जाना चाहते, बोलते इन 1969 अपोलो 11, okay, landed on the moon. Okay, आसानी से बोल सकते हैं, man first landed on the moon in 1969. जो बोलना है आपकी मर्जी. 3. There were 3 astronauts on board on Apollo 11, and the rocket took 3 days to complete the journey to the moon, right? Okay. 30. The rocket circled the moon 30 times, and this gave the astronauts time to prepare for the landing. 8:17. The lunar module landed on the moon at 8:17 in the evening on the 20th of July. इसके लिए जरूरी क्या पढ़ें, जैसे मैंने बताया था ना, लाइन बाय लाइन करके मैं पढ़ा रहा था ना आपको, समझाने के लिए कि देखो पास्ट टेंस है, ऐसे हिंदी करेंगे. अगर आप खुद भी घर पे ऐसे बैठ के आधे घंटे कर लेते हैं तो बहुत बढ़िया. 600 million. 600 million people all over the world watched it on TV live. 1. Neil Armstrong said the famous words everybody knows. That's one small step for man,
one giant leap for mankind. He said those words as he walked on the surface. 22. In total, in total, the astronauts spent 22 hours on the surface of the moon. लगभग एक दिन रह गए कहाँ, मून पे. वाह यार, क्या बताएं, इंसान क्या क्या कर रहा है. मून पे चला गया, देखना. अभी भी अक्सर होता है कि वो चंदा मामा दूर के पुआ पकाए गुड़ के, अपने खाए थाली में, बउआ को दे प्याली में, प्याली गया टूट, बउआ गया. और वहां से हम लोग कहा, मून पे लैंड कर. देखो फोटो, यही है मून का सरफेस. गॉड, आई वुड लव टू. I mean, I want to experience everything that is possible in this life, except for horrible things, you know. I don't want to experience horrible things, but I would like to experience all the good things, all the exciting things. दूसरी तीसरी शादी भी मैं सोच रहा हूँ कर ही के जाऊं, you know. ये आप लोग ढूंढोगे, क्या बात, इतना sacrifice. Okay. This, I can think of it. Imagine if my daughter is well settled in her life, my wife has a job, and she's young and pretty, she can find another man, then why not? Okay. All right. Let's look at the next page. Oh, we don't have time. Okay, no problems. It's Saturday tomorrow. We are going to study adverbs tomorrow. But before I ask you to study adverbs, let's look at the practice book, everyone. Yeah. Was there homework? What was the homework? Ah, yes, page number 43. 43. 43. Okay, I didn't check it. No. कोई बात नहीं. You guys will practice 43 at home. And चलो एक एक्सरसाइज आगे बढ़ा देता हूं आपके लिए, खुद से करके आना. पेज नंबर 46, exercise 8. I'm putting this in the group, okay, for you. रुक जाओ. Exercise 8, part 1 and part 2 both. Part 1 and part 2. I'm putting it in the group for you. This will be your homework. क्योंकि कल आपको ये पढ़ाएंगे हम. I will teach you. जरा देखते हैं आप पहले खुद कैसे करते हो, okay? So don't be absent tomorrow. It's Saturday, but it is going to be fun. We will have some really fun class. अच्छा बेटा, ही नीड नहीं बोलते, ही नीड्स बोलते हैं. ही लाफ नहीं बोलते, ही लाफ्स बोलते हैं. जिन लोगों ने प्रैक्टिस करी है, टाइम, यू, जरा, और मे बी यू बेटा. ही नीड नहीं, ही नीड्स. ओके. ही लाफ नहीं, ही लाफ्स. शी टेल नहीं, शी टेल्स. ओके, फाइन. और बाकी हिंदी में, अच्छा बेटा, शी विल बी टेल नहीं था, बस शी विल टेल. जैसे ही विल लाफ है ना, जरा देखना. ही लाफ्स, ही लाफ्ड, ही विल लाफ. ठीक है, भी नहीं है. वैसे ही शी टेल्स, शी टोल्ड, शी विल टेल. ठीक है, समझ, उसको भी समझाना है, बाकी मैं तो बता ही रहा हूँ. या ही ड्रिंक्स, साहिल, मोहम्मद साहिल. हु इज साहिल हियर विद साहिल? ओके, तो ही कांट राइट. वो थोड़ी लिख रहा होगा यहाँ पे. ये कौन लिख रहा है? अच्छा, वो एक साहिल अपना जो एब्सेंट रहता है, होमवर्क करता रहता है. ओके. ठीक है. थोड़ा थोड़ा रिवीजन कर लेना, वीडियो देख लेना. ओके बेटा, आई विल सी यू गाइस. बाय बाय, टेक केयर एवरीवन.